کتاب کی تقریب رونمائی۔ میں نے اتنی سلیس، اتنی عام فہم اور اتنی براہ راست لکھی ہوئی گفتگو اور براہ راست لکھی ہوئی تحریر بہت کم خاکوں اور باتوں میں دیکھی ہیں جو مصنفین لکھتے ہیں۔ انوار صاحب تہذیب کے اعتبار سے ہندوستان کے تہذیب و تمدن کے ایک بڑے مرکز لکھنؤ سے تعلق رکھتے ہیں۔ انوار صاحب نے اپنی کتاب میں سب سے پہلے اپنے والد گرامی کا ذکر کیا ہے کہ ان کو دنیا میں لانے کا پہلا دینہ یہ ہے۔ انوار صاحب کو اپنے والد سے کتنی محبت تھی اس کا اندازہ اپنے والد کے ذکر میں ایک اقتباس سے لگائیے۔ کہتے ہیں کہ سن 65 میں ابا کی پوسٹنگ کینیڈا کر دی گئی جو انہوں نے باوجود قبول نہیں کی اور پاکستان ہی میں رہنے کو ترجیح دی۔ جو مکمل ایک کہانی ہے خاکے سے زیادہ، وہ ایک افسانہ ہے جو میں نے بہت توجہ سے اور جس نے مجھے خود کو پڑھوا لیا۔ اچھی تحریر وہی ہوتی ہے کہ جو خود کو پڑھوا لیتی ہے۔ لکیریں ہیں تو رہنے دو، میرے پالے میں تم آؤ، مجھے للکارو، میرے ہاتھ پر تم ہاتھ مارو اور بھاگو، تمہیں پکڑوں لپیٹوں ٹانگ کھینچوں اور تمہیں واپس نہ جانے دوں، تمہارے پالے میں جب کوڑی کوڑی کرتا جاؤں میں، مجھے تم بھی پکڑ لینا، مجھے چھونے نہیں دینا۔ کہ وہ سرحد کی لکیریں کسی نے غصے میں جو کھینچ دی تھی، اب انہیں کو اپنا بناؤ پالا اور آؤ کبڈی کھیلتے ہیں۔ لکیریں ہیں تو رہنے دو، لکیریں ہیں تو رہنے دو۔ انوار صاحب کے والدین کا تعلق جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ لکھنؤ سے ہے اور ایک ایسی نسبت ہے جس پر یہ بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں۔ میں چونکہ اہل زبان نہیں ہوں تو پہلے لکھنؤ سے بات کرتے ہوئے بہت مروب ہو جاتا ہوں۔ جو ایک بانک پن ہے، لکھنوی بانک پن، نفاست، نزاکت، لطافت، وہ انوار بھائی کی تحریر کا خاصہ ہے۔ موضوع کتنا بھی تلخ ہو، ترش ہو، ان کی تحریر میں وہ ایک شرافت اور نفاست و نمایاں رہتی ہے۔ کتاب کے آخری حصے کے مضامین عرفان صدیقی کے اس شعر کے مصادق ہیں: میں جل رہا ہوں حقیقت کی دھوپ میں کب سے، میں جل رہا ہوں حقیقت کی دھوپ میں کب سے، کسی گماں کا بھی سایہ میرے یقین میں نہیں، میں اپنی کھوئی ہوئی لہو کی تلاش میں ہوں، کوئی طلسم مجھے 400 پکارتا ہے، ہمارا عہد ہے بے برگ و بار شاخوں سے، اگرچہ قافلہ رنگ و بو پکارتا ہے۔ تو مجھے ایک شعر یاد آ گیا اظہر احمد کا: وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں، وہ بھی کیا لوگ ہوا کرتے تھے میخانوں میں، میں بھی رقصہ سی رہا کرتی تھی پیمانوں میں۔ تو یہ خاکہ اور دوسرے خاکے، خاکہ کیا ہے؟ خاکہ کسی شخص، ہر آدمی میں خوبیاں اور خامیاں ہوتی ہیں، ہم بیان کرتے ہیں، دل سے بیان کرتے ہیں، لیکن خاکے کے پیچھے ایک تہذیب نظر آتی ہے، ایک تاریخ، سیاسی، سماجی۔ تو انوار صاحب نے اس خاکہ لکھتے ہوئے ایک دور کی وفاداری
इंसानियत, दोस्ती और हर चीज़ को उस तरीके से बयान किया है कि वाकई हिदायत देने को जी चाहता है। किस तरीके से इतने लंबे लंबे मज़ामीन लिखते हैं और बैठे बैठे अम्मी काम कर रही होती हैं, अम्मी बातें कर रही हैं, पीछे से कुछ हो रहा है, ये हो रहा है, लेकिन पापा माशाल्लाह से लिखते रहते हैं। और हर टॉपिक रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इट इज़, सोशल टॉपिक्स, सियासी, और उसके अलावा रिलीजियस टॉपिक, और सफाकत, अपने अपने फैमिली के बारे में, तो बहुत मज़ा आता है। एक सेल फोन से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी और पापा बस लिखते रहते थे, पहले रोमन इंग्लिश के अंदर, और कभी कभार थोड़ा सा एक अजीब से भी लगता था कि बस वो बैठ के पर लिखते रहते थे। लेकिन जब वो चीज़ 10-15 मिनट के बाद आती थी फ़ोन पे एक बिल्कुल ही प्रिपेयर्ड आर्टिकल, और जब हम पढ़ते हैं उसको तो ऐसा लगता नहीं है कि किसी ने बस ऐसी बैठ के बातें लिख दी है। यूजुअली ऐसी बातें जो होती हैं वो बहुत रिसर्च करके लोग 3-4 बुक का मुताला करके और रेफरेंसेस दे के लिख रहे होते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बात है कि वालिद साहब इस तरह की चीज़ें लिख सकते हैं। I'm really proud of पापा एंड अम्मी, और जिस तरह उन्होंने लिखा है, जिस तरह उन्होंने अपनी बुक लिखी है, it's amazing, माशाल्लाह। जैसे कि मैं पहले अर्ज़ कर चुका हूँ, मैं अंग्रेज़ी में अक्सर लिखा करता था। उर्दू कीबोर्ड के इस्तेमाल के बाद मैं उर्दू की दुनिया में लौट आया, जो मेरी कौमी मादरी ज़बान है, और अपनी ज़बान में लिखने और पढ़ने का लुत्फ़ अलग ही है, और अपनी ही ज़बान में आप अपने ख़यालात की सही तर्जुमानी कर सकते हैं। सही और संभालते ही मैंने घर में उर्दू सुनी, पढ़ी और देखी। घर का माहौल इंतहाई अदबी और इल्मी था, जहाँ तक किताबें, रसाइल और हर चीज़ ये सब नज़र आती थी। अनवर अहमद साहब मेरी तरह नॉस्टैल्जिया के मारे हुए हैं। इनके आम कॉलम हैं, ये खाके सब में माजी की हसीन यादें जगमगाती हैं। उनके लिखे हुए खाके मशाहिर के नहीं बल्कि उनके करीबी अज़्ज़ा और अहबाब के हैं। इन खाकों में इनके वालिद, इनकी वालदा और इनके भाइयों के खाके सरफहरिस्त हैं। जितने हॉल्स हैं सब में कोई ना कोई दिल बैठे हैं, इसलिए माशाल्लाह बाहर से आए, कोई ना कोई प्रोग्राम हो रहा है। तो ये रौनकें और ये अदबी सरगर्मियाँ जिस तेज़ी से माशाल्लाह हमारे माशरे में अब पा रही हैं परवरिश, उससे उम्मीद है कि आइंदा हमारी नस्ल बहुत बेहतर तौर से हम लोगों के सामने आ सकेगी। ये एक बहुत बड़ा अनवर साहब की किताब कुछ खाके कुछ बातें, यकीनन ये एक ऐसी किताब है जो कि उन्होंने अपने चाहने वालों के, जो कल्बी चाहने वाले हैं, उन्होंने उसके खाके लिखे। लखनवी तहज़ीब, लखनवी माशरत के हवाले से उन्होंने जो ज़िक्र किया वो एक बहुत ही उम्दा, उन्होंने इस रिवायत के तसलसल को बरकरार रखा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं किताब लिख लूँगा और किताब की इस तरह पजीराई होगी, और इतने बाइल्म और पढ़े लिखे शख्स, सारे अफराद जो हैं वो आके इस तरह से इसको मतलब कि किताब को लेंगे, और उसके ऊपर इतने अच्छे अच्छे मकाले पेश किए गए जो शायद मेरी इस्तात से या मेरी हैसियत से बढ़ के हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत आती थी पहले मैं साथ और तकरीबात के लिए, लेकिन आज मेरे अपने शौहर की है तो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वाकई तो आज की तकरीब इस एतबार से बड़ी कामयाब रही। तकरीब यूँ भी कामयाब रही, इसके बाद खाना जो है उन्होंने अनवर साहब ने बहुत शौक़ से किया था। इसकी मैं आपको मिसाल दूँ कि जैसे आप डेकोरेशन वाले पूछते हैं ना कि खाने में क्या है, तो हम कहते हैं मिसालन है, रोटी है, वो कहते थे कि हरे मसाले का खड़ा कीमा है। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें जो हम आपस में लिखते रहते हैं या करते रहते हैं, वो ज़्यादा लोगों तक उस सूरत में पहुँचती है जब वो किताब की सूरत में छप कर आए। तो माशाल्लाह बहुत अच्छी किताब लिखी है, अल्लाह करे ज़ोर कलम और ज़्यादा। और फिर सबसे बड़ी बात इनकी हर चीज़ के बारे में आलमी, चाहे वो रायामा हो, आलमी मसाइल हों, चाहे मज़हब से मुताल्लिक़, इनकी बड़ी पार्शल, एक तरह से बड़ी बेलाग राय होती है, और उस पर एक ठोस अपना नज़रिया रखते हैं और उसके मुताल्लिक़ खुलकर इजहार भी करते हैं। इनकी ये बात बहुत मुझे मतलब पसंद है। तकरीब माशाअल्लाह बहुत ही अच्छी शानदार तकरीब रही, ख़ुसूसन जितने भी जो हाज़रीन थे और मुकर्रर हज़रात थे, उन्होंने बहुत अच्छा मकसद ये कि एक अपना रिव्यू दिया है इस किताब के ऊपर।
اور ماشاءاللہ مقصد ان کی ابھی دیکھیں گے کہ جس طرح لوگ تعریفیں کر رہے ہیں تو یقیناً کوئی خاص بات ضرور ہے. کچھ خاکیں کچھ باتیں. تو ماشاءاللہ انوار صاحب کی کتاب کا اجرا تھا، ماشاءاللہ بہت اچھی تقریب تھی.